Okay, so welcome all of you guys in the second session of the 3D geometry. Now, before this session, we have done a session which is completely based on the formulas, on the concepts, and we have also learned about how we have derived the formulas. So, in the last session, if you haven't watched, go watch it, and through that lesson, through that particular 1 hour video, you will learn how exactly we should remember each and every formula. And you will also learn that 3D geometry is having so many formulas. You will learn two things basically, that 3D geometry is having so many formulas and there is a proper way to remember each and every formula. You just not learn and remember all the formulas in a plain manner. What does it mean? That you should learn each and every formula in a flow which I have created in the last lecture. तो अभी तक बेटा आपने नहीं देखा है, go watch it after this session. But need not to worry if you haven't watched it till now, because in this session we will directly use all the formulas. Okay. And the second thing that we have learned from the last lecture is how to remember the formulas. And मैंने बेटा आपको बताया था in one of the Saturday session that if you want to remember formulas for a longer period of a time, you should learn with some logic. बेटा अगर लॉजिक होगा तो बहुत इजी हो जाएगा फॉर्मूला समझने में. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. So guys, my name is Aditya Arya, master teacher on Vedantu and taking care of the mathematics and statistics portion. So this particular session is based upon just past year question. But what does it mean? That we will cover all the CBSE question, I think some 4 or 5 years. Through this particular session, you will understand what exactly questions will come in the examination, what exact formula that you have to be focused on, and what is the weightage of the chapter. And I'm telling you, vector algebra and 3D geometry is your very important chapter. Why? Because two things, because this is completely separate chapter. That means if you do not know calculus, if you do not know any of the chapter from the differentiation, or even I would say if you do not know from the simple geometry, straight line, circle, parabola, still you can solve this question with the few basics. And the second thing why it is so important, that this particular chapter is having a weightage of questions like which is of 6 marks. मैंने आपको बताया था in the last session, in the last Saturday session, that if you want marks, if you want quantum leap in the marks, focus on the question which is of 5 marks, 4 marks or 6 marks, because you will remember less question, you have to do less question and you will improve your marks. Okay, so let's start. And if you haven't liked this video, like it please, subscribe it and share it to your competition, share it to your friends, share it to your mates, to the maximum people, so that it will be helpful to our बेटा देखो, शेयर नहीं करोगे, ज्ञान को बांटना चाहिए. अपने आप पर रखकर क्या करोगे, इसको बांट दो. ठीक है. और अगर आपको आना अच्छा लगता है वी कॉमर्स पर, इफ यू आर द ओल्ड पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट 1 or 2 months, do like, share and subscribe. Now let's start. One more notification, that if you haven't joined the Telegram group, join it, because as the promised, maths content we have started to share on the Telegram channel. You just have to join it. Link is in the description box, and in the description box there is one more thing, which is the enrollment plan. बेटा enrollment करना है. क्यों करना है? Because you can schedule according to your needs. इसके बारे में बात करेंगे फिर से. You can choose your language, you can choose your faculties, you will have access to the questions from the exam pattern, 10,000 questions. You can practice as many, and you will have 5,000 plus hours. You can learn as many as things. You can revise the topic again and again, and you will have the crash course. Now, so if you are feeling that you do not need it, pass it to the person who needs it. And why? Because right now, from 20th September, not September, it's December, from the 20th December till 27th December, मतलब कितने दिन बचे हैं अभी बेटा? आज का, कल का और परसों का. फटाफट से एनरोल करो. कोड क्या है? ADA PRO. Aditya for AD, A for Arya, P for Pro. Pro is the name of the course.
लिंक इज इन द सब्सक्रिप्शन बॉक्स। और अभी आपको स्टार्ट करते हैं पढ़ाना क्या 3D ज्योमेट्री, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन, एंड वी कैन लर्न इट बाय सॉल्विंग द क्वेश्चंस दैट हैज केम इन द एग्जाम। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, do not worry, just listen the whole lecture and I will make sure that every concept will be clear. So this question has came in CBSE 2015, 2 मार्क्स का सवाल था। और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना बेटा, यू विल से सर 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन, ये तो मुझे जरूर सीखना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर एक टर्म आती है डायरेक्शन कोसाइन। व्हाट इज द टर्म? डायरेक्शन कोसाइन। देयर इज अ टर्म, find out the direction cosine of the line joining the points. There are 2 points over here and we have to join these 2 points and we have to find out the direction cosine of the line. First of all, direction cosine can be find out. Direction cosine can be find out only for the line. You cannot find out for the point, okay? तो यहां पर आपको हमें पहले चीज सीखेंगे हम लोग कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है? तो ये हमने किया था इन द लास्ट लेक्चर, बट वी आर डूइंग इट अगेन, नो वरीज। डायरेक्शन कोसाइन। नाउ डायरेक्शन कोसाइन इज हैविंग मेनी फॉर्म्स टू लर्न, बट वन ऑफ द फॉर्म इज डायरेक्शन रेशियोज प्लस माइनस डायरेक्शन रेशियो डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ द डायरेक्शन रेशियो. Now we will also learn what is direction ratio. Over here I am writing beta, direction ratio is basically difference of coordinates, okay? For example, you will have 2 points, point A, point B. Point A is x1, y1, z1, x1, y1 and z1. Point 2 is x2, y2 and z2, okay? x2, y2 and z2. So direction ratio will be x2 minus x1. अगर आपको x1 minus x2 लेना, you can do it. x2 minus x1, comma y2 minus y1, comma z2 minus z1, okay? This is the point. Fine. This is the direction ratio, just the difference of the coordinates. So basically you are having 3 kinds of direction coordinates: drx, direction ratio of the x, direction ratio of the y, and this is the direction ratio of the z. I hope this is pretty clear to all of you now. And what is the modulus? Modulus of that direction ratio is under root direction ratio of the x square plus direction ratio of the y square plus direction ratio of the z whole square, okay? This is the direction ratio. Now there is one more thing that you should know. What is the meaning of the direction cosine? Direction cosine is the cos of angle between vector and axis. So we are having 3 axes in the 3D. What is the meaning of 3D? It's 3 direction. So we will have 3 axes: x axis, y axis and z axis. So we will have 3 direction cosines. From here 3 direction ratios. Similarly dcx, if we will use a drx, we will have dcx. If we will use a dry, we will have dcy, and if we will have drz, we will have dcz. Now this is the case when you are having the point, but the meaning will not get changed, only the form to write the direction cosine will change. So I am writing over here another form of the direction cosine, which is for x it is I cap dot a vector upon modulus of the a vector. Similarly guys, for dcy is equals to j cap, this is I cap dot a vector upon this, okay? And if you will write down the answer, then you will have dcz and you will have a vector, again you will have it is equals to k cap dot a vector upon modulus of a vector. I hope it is clear to you. Now अगर आप इसको देखोगे, so what is exactly this particular thing?
दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली यूनिट वेक्टर। बेटा हमने ये सब लास्ट लेक्चर में किया था, लेकिन मेरा काम क्या है आपको बार बार याद दिलाना, सो दैट यू कैन हैव द मैक्सिमम मार्क्स इन योर पेपर। दिस इज अवर स्ट्रेटेजी टू, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। व्हाट इज द की? Key is the recall. If you can recall, through revision. Through revision, you can recall better. And this is unit vector which you can represent as a cap. So you will see direction cosine is basically I cap dot a cap. Okay, this is j cap dot a cap. This is basically k cap dot a cap. What is the unit vector? Unit vector is something which is having a magnitude as 1. Okay, magnitude 1 and direction is in the direction of a. Fine. Now if somebody will ask you, देखो बेटा ये क्या है? cos alpha. This is cos beta. As I have told in the last slide that this is the cos of the angle between x axis, y axis and z axis and with the axis. Okay, so alpha is the angle with the x axis, beta is the angle with the y axis, and gamma is the angle with z axis. I hope this is clear. Now if somebody will ask you, note it down. This is cap, this is cap. So if this is cap, you can say that cos alpha. Okay, this is cap, you can say cos square alpha. Okay, I am writing over here that cos square alpha plus cos square beta प्लस cos स्क्वायर गामा विल बी इक्वल्स टू 1। ये आपका कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा 1। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट, व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन व्हेन यू विल हैव द आंसर ओवर हियर। ओके, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल हैव ax, ओके, एंड यू विल हैव ay। और ऊपर क्या होता था बेटा? ऊपर क्या होता था? व्हेन यू विल मल्टीप्लाई k डॉट a वेक्टर यू विल हैव az, और नीचे क्या है? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। इसका मतलब यहां से एक और बात समझ में आई, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो इज ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस ak az k कैप। तो जो I के साथ होता है दैट इज डायरेक्शन रेशियो, जो J के साथ होता था दैट इज डायरेक्शन रेशियो, और जो K के साथ होता है वो भी डायरेक्शन रेशियो होता है। आई होप ये पूरी बात समझ में आई आप लोगों को। यस, अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 which has came. This is the complete theory that you will need. ये 2 स्लाइड, यानी कि अभी हम लोगों को कितनी देर हुई है? We have just done 5 minutes. 5 मिनट में हमने ये पूरी थ्योरी कवर की है, एंड यू कैन हैव द क्वेश्चन आंसर. Now question is, we have to find a direction ratio. Points are 4, 3, -5, and another point is -2, 1, -8. यही क्वेश्चन है. यस बेटा, यही क्वेश्चन. हमने क्या सीखा था? डायरेक्शन कोसाइन विल बी कैलकुलेटेड फॉर x, will be calculated for y, and will be calculated for z, and for this we will need direction ratios also. हमें डायरेक्शन रेशियो पहले निकालने पड़ेंगे. व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो? डायरेक्शन रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द x. सो 4 minus of -2 is equals to 6. Direction ratio of y will be equal to 3, -1 will be equal to 2. Direction ratio of the z will be equal to -5, -8 will be equal to बेटा कितना होगा? 3, 2 and 6. अब लिख दो आंसर. डायरेक्शन कोसाइन will be +-6 अपॉन अंडर रूट. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है. 2 मार्क्स का. अगर आपको ये थ्योरी आती थी, अगर आती तो आप कर लेते. मान के चलो यू आर गिविंग एग्जामिनेशन CBSE 2015. ये हुआ +-2 अंडर रूट. अब पहले ये निकाल लें क्या चीज है. 36 + 4 40 + 9 49. बेसिकली दिस इज +-6/7. दिस इज 2 +-7 and this is +-3/7. Direction ratio of z divided by modulus z, modulus of the direction ratio. I hope this is pretty clear. Now
if you will assume it as point A, if you will assume this is point B, what exactly we have calculated is the BA vector. हमने बेटा क्या निकाला है? हमने निकाला है BA वेक्टर. ये क्या है? VA वेक्टर. अगर आप देखोगे BA वेक्टर गौर से तो ये आपका आता है 6i कैप, 2j कैप एंड 3k कैप. इसका हमने निकाला है आंसर. और माइनस क्यों निकाल दिया हमने? y माइनस, बिकॉज माइनस लगते ही बन जाएगा AB का कोसाइन. आई होप क्लियर है. और एक और पॉइंट मैं यहां पर ऐड करूंगा डायरेक्शन कोसाइन के अंदर ही, दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस और वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन और वेक्टर पैरेलल है बेटा तो ये वाली चीज यूज कर लेना, दैट कोसाइन, सॉरी द direction cosine will be same, modulus of the direction cosine will be same if two lines are parallel. Or we can say direction cosine of the first line will be plus minus of direction cosine of second line, that means both of them are parallel. ये simple सा concept है, इसके ऊपर भी questions आते हैं और आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. आप मान के चलिए 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पेपर में. अब लगाते हैं सीबीएसई 2015 4 मार्क का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस. ये दोनों लाइन के परपेंडिकुलर हैं. अब फटाफट से समझते हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. इन द लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू द लॉजिक. In this lecture, I will write down what you will need to solve this question. So, equation of a line. In the last lecture, if you will see how exactly we have derived. बहुत simple है बेटा. Equation of a line is a vector plus lambda times of b vector. Lambda is just a constant, and better to say we will call it as arbitrary constant. Arbitrary का मतलब है we can choose according to our need or we will calculate according to the need of the question. तो ये arbitrary constant है. Either we will calculate it or either we will assume it. Now, point is what exactly is the A vector? If a line, we are calculating the equation of a line which passes through a vector. Which passes through a vector. And what is V vector? We are calculating a line which is parallel to B vector. We are calculating equation of a line which is parallel to B vector and passing through. मतलब यहां से निकलता है, ये कौन है? A, और ये क्या है? B vector. यहां से निकलता है और इसके parallel है. मतलब क्या लिख रहा है कि बगल वाली गली से निकलेगा उसके घर से. बगल वाली का मतलब है पैरेलल बेटा. तो यहां पर मैंने एक बात यहां पर आपको समझाई थी. इफ टू लाइंस और वेक्टर्स आर पैरेलल, दिस इज वन ऑफ द कंडीशन. और यू कैन से इफ टू लाइंस और वेक्टर आर पैरेलल देन ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, या फिर इसको ए भी मत करो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे अभी कि सर वहां पर तो ए पॉइंट था. तो इट्स बेटर b1 वेक्टर विल बी इक्वल टू लैम्डा b2 वेक्टर. इफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर वी कैन डू सच थिंग. So, if question is we are calculating a line which is parallel to B vector, यानी कि lambda B vector and passing through A vector. This is one of the equation. Now, the second form that we have to remember is this particular thing. X minus x1 upon direction cosine. किसका? B vector का बेटा. Direction cosine upon y minus y2, sorry, y minus y1. y minus y1 upon direction cosine of the y. Clear है point? Now z minus z1 is equal to direction cosine of the z. अगर आप बोलोगे direction cosine नहीं लिखना है, it's completely fine. Or you can write it down as x minus x1 upon direction ratio. किसका? B vector का direction ratio is equals to y minus y1 upon direction ratio of the y. ये सब बातें हमने की हैं लास्ट लेक्चर में, लेकिन यहां पर we are doing the summarized form. ओके? और अगर ये v वेक्टर ना दिया जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा. We will calculate it. Let's suppose 2 points are given, C vector and D vector. These 2 points are given. तो मैं क्या करूंगा यहां पर? We will calculate a line passing through C vector and D vector. Suppose the question is find the equation of a line which passes through A vector and which is parallel to a line
अ पैरेलल टू अ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड डी, तो यहां पर बेटा क्या लिख देंगे, डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये भी आपका आंसर हो जाएगा अगर आपके पास बी वेक्टर नहीं है तो। और दोनों के डिफरेंस से बेटा क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। बात समझ में आई? या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x2 माइनस x1 है तो डिफरेंस ना कोऑर्डिनेट्स का, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये हो जाएगा z2 माइनस z1। सेम चीज, सॉरी यहां पर डायरेक्शन रेशियो है तो हम इसकी बात करेंगे। दिस इज डायरेक्शन रेशियो, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन रेशियो। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, दिस इज अ समराइज्ड नोट दैट यू कैन हैव फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नाउ कैलकुलेट, now let's calculate the next question first, because it is given over here. Find the vector equation of a line passing through 2 1 and minus 1, passing through 2 1 and minus 1. Since I am writing it as vector, so I will write down as 2i cap plus j cap minus k cap. Okay, अच्छा, अगर आपको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता है, नीड नॉट टू वरी, इन द लास्ट सेशन वी हैव इवन कवर्ड व्हाट एग्जैक्टली वेक्टर अलजेब्रा, हाउ इट हैज स्टार्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई जे के एंड ऑल दोस थिंग्स, बट आई सपोज दैट दिस टॉपिक हैज बीन फिनिश्ड इन योर स्कूल, सो इट विल बी एज अ रिवीजन फॉर यू पीपल नाउ। एंड पैरेलल टू द लाइन, बेटा इसके पैरेलल है और ये लाइन एस्केप, ये देख कितना मतलब बेवकूफ बनाया है। हमें एक इक्वेशन निकालनी है जो इससे पास होती हो और जो इस लाइन के पैरेलल हो। आप बोलोगे सर ये लाइन तो खुद इसके पैरेलल है, मतलब दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर लाइन, और हमें क्या निकालना है, R1 वेक्टर। तो अरे इतना घूम के क्यों जाना, इसको बीच में से उड़ा दो, बिकॉज हमें मिल चुका है बी वेक्टर। बेटा बी वेक्टर क्या है, लिखा है 2i माइनस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस के वेक्टर। ए मिल गया, बी मिल गया, इक्वेशन मिल जाएगा बेटा। इक्वेशन विल बी क्या होगा, 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस क्या होगा, ये आपका आ जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i माइनस जे प्लस के। इफ दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, इफ somebody will ask you what is the Cartesian form, now Cartesian form of the equation is this। देखो अब कैसे लिखेंगे, x माइनस डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पॉइंट 2। कैसे निकाला हमने डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द कोऑर्डिनेट एंड द line is having another coordinate x y z, x minus 2, y minus 1 and z minus of minus 1 will become plus 1 and divide by direction ratio of this 2 minus 1 upon 1। बेटा ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। इन दोनों फॉर्म के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। नहीं समझ में आए फटाफट से इसको लेक्चर खत्म करने के बाद अगले सेशन को हम देख लेंगे, अगला मतलब पिछला वाला जो हमने किया था 23 तारीख को। ओके, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अब मैंने ये वाला क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, अब ये भी निकाल लेते हैं। देखो बेटा डिस्टेंस बिटवीन, लिख लो इस फॉर्मूले को अगर आपको नहीं आता है तो, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, मैं आपको इसका मतलब भी समझाऊंगा, स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस विल बी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर। बेटा फॉर्मूले में देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है वो लोग समझ जाएंगे क्या लिखा हुआ है, उन लोगों को पता है क्या चीज है। स्क्यू लाइन बता देता हूं, स्क्यू लाइन का मतलब होता है टू लाइंस विच आर इन द डिफरेंट प्लेन, दो लाइन जो डिफरेंट प्लेन में होती हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा स्क्यू लाइन का मतलब टू लाइंस विच आर इन द पैरेलल प्लेन। पूरी डेफिनेशन, पैरेलल प्लेन मीन दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट किया तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो सकता है अलग अलग प्लेन में हो लेकिन दे शुड नॉट इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट करा तो ये
स्क्यू लाइन नहीं है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल लाइन हो जाएगी। नाउ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन, उस केस का आंसर क्या होगा, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ v वेक्टर। अगर आपको याद हो तो ये क्या है, दिस इज b वेक्टर कैप, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और बेटा इसका मतलब डॉट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ये भी सीख लेते हैं फटाफट से। डॉट प्रोडक्ट, क्विकली, डॉट प्रोडक्ट इज बेसिकली used to calculate a vector in the direction of other vector, a vector in the direction of other vector। ओके, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट यूज किया था, जिसमें होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर विल बी इक्वल टू a मॉडुलस b मॉडुलस cos थीटा, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, और यू विल से ax bx प्लस ay by प्लस az एंड bz, दिस इज द आंसर ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इतनी ही थ्योरी है। अब आपको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप डिटेल में पढ़ लो, और दिस इज जस्ट 2 मिनट का काफी है, और डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लिखाएंगे, इसके बाद हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ये भी जानना बहुत जरूरी है, दो वी हैव डन इट इन द लास्ट लेक्चर, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखो ये दो फिंगर देख रहे हो, so you will have two vectors a and b, this is a, this is b, okay, this is a, this is b। a क्रॉस b का मतलब है कि हम लोग एक वेक्टर निकाल रहे हैं which is perpendicular to a and b। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनो, ये है आपका a वेक्टर, this is b वेक्टर। इसका मतलब होता है why we are doing is to calculate, ध्यान रखना कौन सी चीज कब काम आ रही है, to calculate a vector perpendicular to both a and b vector simultaneously, दोनों से perpendicular होगा ऐसा वेक्टर निकालने के लिए। अब ये क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना, angle between them is theta, and if we will, what we will do, we will rotate a cross b का मतलब है यहां से यहां जाना है, ऊपर जाओ एक बार जाओ, दिस इज a, दिस इज b, तो यहां से यहां जाओगे राइट हैंड, दिस इज a, दिस इज b बेटा, और फ्लेमिंग रूल a to b ऊपर, तो आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगा, एंड वी कॉल इट एज एन वेक्टर, इसको हम बोलते हैं एन वेक्टर, which is equals to modulus a vector modulus b vector sin theta, and this have direction, since it's an vector, so direction will be n cap. Cap is a unit vector used for unit vector, इसका मतलब समझ लेते हैं, unit vector in the direction of n vector। मतलब if you want to change, अगर मैं a वेक्टर मुझे निकालना है इन दी डायरेक्शन ऑफ n वेक्टर, बेटा ध्यान सुनो, अगर मुझे निकालना है a वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ n वेक्टर, क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब होता है अगर मुझे निकालना है a वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, लिख देता हूं यहां पर, a वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ n वेक्टर, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे बिकॉज ये प्लेन निकालने के काम आने वाली है। ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन बात ये कि एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करें। एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट करना बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। अगर आपने डिटर्मिनेंट का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, जस्ट गो वॉच द प्लेलिस्ट, बहुत सिंपल लेक्चर है बेटा। क्योंकि अब यहां पर क्या करना है आपको, ए क्रॉस बी इज ए एक्स ए वाई, पहले ए लिखना पड़ेगा, and then bx vy and bz। now this is also a cross b, और एक बात का ध्यान रखोगे कि in the dot product this is equals to b vector dot a vector, but in this case this is equals to minus times of, क्योंकि बेटा अभी मैंने क्या बोला, b से a ऊपर, B से A ऊपर दिख रहा है, B से A ऊपर, लेकिन अगर मैं गया B से A से B ऊपर, A से B, लेकिन अगर गया B से A नीचे, डायरेक्शन उल्टी हो गई, मतलब नेगेटिव साइन।
ये डायरेक्शन का खेल है पूरा। और यहां से मैं आंसर लिखूंगा, यहां पर एक और चीज लिखना, प्लस माइनस प्लस। अब जिन लोगों ने डिटरमिनेंट किया होगा पहले, मैट्रिक्स की होगी बेटा, इट विल बी इजी फॉर यू पीपल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस माइनस प्लस। ओके, नाउ ओवर हियर आंसर विल बी आई कैप, और यू कैन ऑल्सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, आंसर विल बी, ध्यान से देखो, आई कैप, ओके, इन द आई कैप ax bx will not come, ay bz, इसका y और इसका z, इसका z इसका y, माइनस by az। ओके, नाउ माइनस j कैप, सेम थिंग ओवर हियर, इसका a इसका b पहले आएगा, इसका a पहले आएगा, इसका b बाद में आएगा, माइनस bx az। फाइन, एंड नाउ प्लस k कैप ओवर हियर, k कैप का मतलब क्या है, इसका a पहले आएगा, ax by माइनस bx ay। I hope this is clear to you what is cross product. Now why we are using cross product? Because we want a perpendicular. Question पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। दीज आर पैरेलल लाइन्स, यस और नो? ये पैरेलल लाइन ही है बेटा, ये देखो, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। और अब आप पढ़ोगे तो यहां पर हमने क्या निकाला था, R2, यहां पर हमने निकाला था R2, मैं लिख देता हूं, R2 क्या है, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या निकाला आपने, 2i प्लस j माइनस k, 2i कैप प्लस j माइनस k कैप प्लस लैम्डा b वेक्टर, v वेक्टर बेटा सेम रहने वाला है, 2i माइनस j प्लस k, 2i कैप माइनस j प्लस k कैप। अच्छा, R1 क्या है, R1 was given in the question, R1 was I plus j, I plus j plus lambda 2i minus j plus k। आंसर क्या होगा, आंसर बेटा क्या होगा, when there are two parallel lines, answer is simple that this is a2, ये a2 है, ये a1 है, distance will be equal to a2 minus a1, 2i minus I is I, j minus j is 0j, मतलब j है ही नहीं, j कैप माइनस k एंड 0 कैप माइनस k कैप। बात समझ में आई, 0 k कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस j प्लस k कैप डिवाइड बाय अंडर रूट, बिकॉज मॉडुलस ऑफ b 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और मैंने आपको डॉट सिखाया है, डॉट में क्या सिखाया, i को i से, j को j से, k को k से, डिस्टेंस आपका आएगा, यहां मॉडुलस साइन लगाना मत भूलना, और आपका ये आंसर आ जाएगा, i इंटू 2i इज 2 प्लस 0 इंटू माइनस 1 0, माइनस 1 इंटू 1 इज प्लस 1, सॉरी माइनस 1 इंटू प्लस 1 इज माइनस 1, ओके माइनस 1, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय अंडर रूट कितना है, अंडर रूट हो जाएगा ये 4, 5 और 6, और ये आपका आंसर है। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो दिस इज पॉजिटिव, 2 माइनस 1 इज 1 बाय रूट 6, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। निकाल गया। अब पिछला वाला क्वेश्चन करेंगे, अब आप सुनिए ध्यान से। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइन्स। अब बेटा, अब मैं आपको ना तरीका बताऊंगा, करना आपको है। मेरे पास ये लाइन है, आई हैव दिस लाइन, लेट्स कॉल इट R1, लेट्स कॉल इट R2, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, लेट्स कॉल इट B1, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, लेट्स कॉल इट B2, ओके, B1 and B2. Now I want a line which is perpendicular to these two lines, that means I have to calculate B1 cross B2, I have to calculate a line which is perpendicular। तो ये क्यों किया, ये किस लिए किया, कि B1 B2 निकालना है। लिख देता हूं आपके लिए मैं, ठीक है, नहीं तो आप घबरा जाओगे, सर आपने करके नहीं बताया, एक एग्जाम्पल तो बनता है। B1 क्या है, 3i माइनस 16j, 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप। और आपका B2 क्या है बेटा, वो भी देख लेते हैं। B2 क्या है बेटा, ये है 3i प्लस 8j माइनस 5k, 3i माइनस 8j प्लस 5k। चेक कर लेते हैं एक बार, सही लिखा है, 3i
प्लस 8j प्लस 5, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, ये क्या है आपका 3i प्लस 8j माइनस 5k। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर टू b1 एंड b2 विल बी इक्वल्स टू, क्या होगी वो लाइन, बेसिकली लाइन का मतलब है वेक्टर, हम वेक्टर निकाल रहे हैं। ओके, v1 क्रॉस v2। अब आप पूछ सकते हो कि सर v1 b2 क्यों निकाला, b2 क्रॉस b1 क्यों नहीं निकाला, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, i कैप j कैप k कैप। ओके, यहां पर लिख दूंगा 3 माइनस 16 7, 3 माइनस 16 एंड 7, 3 8 माइनस 5, 3 8 माइनस 5। अब ध्यान रखेंगे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, यहां पर मैं लिख रहा हूं b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू i कैप 16 minus 5 is 80 minus 8 into 7 is 56 minus j कैप मतलब इसको यूज मत करना, 3 into minus 5 minus 15, 3 into 7 minus 21 minus into 3 into 7 is 21 plus k कैप, इसको यूज मत करना, 3 into 8 24 minus 3 into minus 16 minus 48 minus will become plus 48. Now this will be equals to, I'm writing final answer, 80 minus 56 will be equal to, ये आपका बनेगा 24 iota। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी बेटा, ठीक है, मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता रहा हूं, so that we can have maximum number question। minus 15 minus 21 is minus 36 j cap and 24 plus 48 will be equals to 72 k cap। बात समझ में आई। अब यहां पर अब हम बोलेंगे कि b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर कितना आया बेटा, 24 i कैप माइनस 36 j कैप प्लस 72 k कैप। लेट्स चेक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स चेक, यस इट्स परफेक्टली फाइन। नाउ it's completely fine. If you want to calculate b2 vector into b1 vector, it's just minus times of this. But how does it matter? We want a vector which is perpendicular to it. इसके perpendicular चाहिए मुझे। अब दोनों में से कोई भी यूज करो, मैं आपको बताऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Equation of a line passing through this point, equation of a line passing through, देखो 1 2 minus 4, 1 i कैप 2 j कैप माइनस 4 k कैप, इससे पास होती है। एंड दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज लाइन्स, और ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर। अरे भाई देखो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, हाँ, और ये लाइन भी इसके परपेंडिकुलर है। क्या हो गया, दोनों पैरेलल हुए नहीं हुए, तो लैम्डा टाइम्स, अब लैम्डा देखो अगर आप ये यूज करोगे तो लैम्डा विल बिकम माइनस लैम्डा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू कैन हैव योर आंसर इन दिस मैनर, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्शन कोसाइन सीखा, डायरेक्शन रेशियो सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 से डॉट प्रोडक्ट सीखा। वी हैव लर्न अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट, वी हैव डॉट एंड स्केलर आर सेम, वी हैव लर्न अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, वी हैव लर्न अबाउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एंड वी हैव आल्सो लर्न अबाउट द यूनिट वेक्टर एंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम अदर वेक्टर। दीस कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न। और अब करेंगे अच्छा 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे पहले 5 मार्क का क्वेश्चन किया। सॉरी जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। तो ये हमने 2 मार्क का क्वेश्चन, फिर 4 मार्क का क्वेश्चन और 6, बेटा 12 मार्क का क्वेश्चन लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस निकाल कर देखते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, अभी तो बताया है, अभी तो बताया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज a2 माइनस a1 डॉट b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर, ये है। अब ध्यान से सुनना, एक तरफ आप पूछ रहे हो डिस्टेंस बिटवीन
टू लाइंस, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। लेकिन अगर दे आर हैविंग सम इंक्लिनेशन, आप खुद सोचो, इफ दे विल नॉट बी इन द पैरेलल प्लेन, अगर वो पैरेलल प्लेन में नहीं हुआ, या फिर छोड़ो पैरेलल प्लेन में छोड़ो, ये अलग अलग प्लेन में भी है, लेकिन एक ऐसे जा रही है, ये एक ऐसे जा रही है, दे विल नॉट हैव एनी इंटरसेक्शन, दे विल हैव द डिस्टेंस। लेकिन अगर इन दोनों का, अगर if line 1 and line 2 is having the intersection, distance between them has to be 0, yes or no? If two lines intersect, कहां लिख लेंगे, if two lines intersect, if two line intersect, the distance between them is 0। अब आप क्या करोगे बेटा, आप या तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, अगर यहां से डिस्टेंस 0 आ जाता है तो आप क्या बोलोगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज 0 एज दे इंटरसेक्ट। अब मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा आंसर 0 आ गया, ठीक है। अगर 0 आ जाता है, इफ इन केस इफ द लाइन इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार पहले मैं प्रूव करूं 0 है और फिर मैं उसको बोलूंगा इंटरसेक्ट हुआ है और फिर मैं पॉइंट फाइंड आउट करूंगा ना। मैं क्या करूंगा, पहले मैं अज्यूम करूंगा, मैं अज्यूम कर लूंगा कि बोथ द लाइंस आर हैविंग द इंटरसेक्शन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। अब ध्यान से सुनना, पहली लाइन क्या है बेटा, पहली लाइन क्या है, R1 इज इक्वल्स टू, लाइन क्या है, 3i कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस प्लस 2j कैप, और ये क्या है, माइनस 4k कैप, माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप, और इसके बाद क्या है, प्लस 2k कैप। अब एक छोटा सा डेमो देखो, ये क्या है, पॉइंट है। अच्छा, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड लाइन पासिंग थ्रू x, y, z। मैंने आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट द कार्टेशियन पॉइंट, the line passing through this point and the point which I will assume, x minus 3 upon direction ratio of this line, and हमने क्या बोला था, y minus 2 upon direction ratio of the vector which is parallel to this, ठीक है, is equal to z minus of minus 4 plus 4 divide by 2 डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस 2। अब लेकिन मैंने आपको बताया नहीं ये किसके बराबर होता है, दिस विल बी इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर, ये आर्बिट्री कांस्टेंट, इसके बराबर होता है बेटा। व्हेन यू विल कैलकुलेट x इक्वल टू लैम्डा प्लस 3 आएगा, चेक कर लेना, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 आएगा। अब यार जब यही सब करना था तो मैंने ये सब नाटक क्यों किया बताइए, मुझे डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए। And in that case, I will say that I need not to do any such thing because R1 vector क्या है, x I cap plus y j cap plus z k cap is equals to 3i plus lambda 3 plus lambda I cap plus 2 plus lambda 2 lambda plus 2, yes or no, 2 lambda plus 2 j cap plus 2 लैम्डा माइनस 4k कैप। कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा इसके अंदर, 2 लैम्डा माइनस 4k कैप। अब क्या करना है, ये डायरेक्शन रेशियो इसके बराबर होना चाहिए, सो x इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, जे कैप बराबर होगा y इक्वल टू क्या होगा, 2 लैम्डा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 4। अब इस बात को हम यहां पर रखेंगे, अब यहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर ऐसी बात है तो इधर का पॉइंट भी निकाल दो। क्या आएगा, x बराबर आएगा 3 म्यू प्लस 5। क्या आएगा x बराबर आएगा 3 म्यू प्लस 5, यस और नो। y कितना आएगा चेक करो, y आएगा आपका 2 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 2, इसको म्यू बोलते हैं, ठीक है। म्यू इंटू 6 म्यू और k तो है ही नहीं, तो 6 म्यू हो जाएगा। अब अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट दैट पॉइंट, अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो सुनिए x विल बी इक्वल टू x, सो लैम्डा प्लस 3 शुड बी इक्वल्स टू, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो 3 म्यू प्लस 5 ये होगा।
क्योंकि दोनों पॉइंट जहां पर इंटरसेक्शन होता है एट दैट पॉइंट x एंड y एंड z विल बी सेम. 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2 म्यू माइनस 2. और यहां से हमें क्या मिलेगा? 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 6 म्यू. 2 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू 6 म्यू. अच्छा, वेरिएबल कितने हैं? देयर आर 2 वेरिएबल्स. इक्वेशन कितनी है? 3 इक्वेशन. मतलब एक्स्ट्रा इक्वेशन है. वी विल यूज 2 इक्वेशंस. We will use 2 equation and we will 2 equation 2 variable we can calculate the variables. हम वेरिएबल निकाल सकते हैं. ओके और अगर जो भी वैल्यू आएगी लैम्डा म्यू की, इफ वी विल राइट डाउन ओवर देयर एंड इफ इट सेटिस्फाइज दैट मींस लाइन इंटरसेक्ट. करके दिखाता हूं. 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 2. तो यहां पर मैंने क्या किया? सबसे पहले 2 को 2 से काटो. 2 ये आपका हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 म्यू माइनस 1. ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कटेगा, आपके पास आएगा लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू म्यू माइनस 1. यहां से आप लिख सकते हो लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू म्यू. यस और नो? और सिमिलरली बेटा यहां से कर सकते हैं क्या? काट के देखो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो. यू विल हैव लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 म्यू. तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं कि यहां पर मैंने क्या किया? लैम्डा की वैल्यू निकाली 3 म्यू प्लस 2. ओके, और यहां पर पुट कर दी. तो 3 म्यू प्लस 2 विल बी इक्वल टू म्यू. इसको सॉल्व करेंगे बेटा और ये आपका क्या आएगा? म्यू बराबर आना चाहिए -2. चेक कर लो एक बार. म्यू बराबर आना चाहिए -2. देखो 3 इंटू -2 -6 प्लस 4 -2. म्यू बराबर -2 आ गया. म्यू बराबर, अभी कैलकुलेशन है बेटा आप कर लेना. म्यू बराबर -2 आ गया और लैम्डा बराबर कितना आएगा? पुट करके देखो. म्यू बराबर -2, लैम्डा बराबर आएगा -4. चेक करके देखो. म्यू बराबर -2 -6, लैम्डा इज -4 -2 -6. अब अगर इसमें पुट करने पर इफ द इक्वेशन सेटिस्फाइज -4 प्लस 3 is equal to 3 into -2 plus 5 is equals to -1. -4 plus 3 is -1. -6 plus 5 is -1. इसका मतलब है both the values of lambda and mu satisfy this equation. इसका मतलब है कि yes they intersect. And what is the point? What is the point बेटा? अब आपको करना क्या है? लैम्डा का वैल्यू निकल गया है -4. या तो ये पुट कर दो इसके अंदर, या म्यू निकल जाएगा -2. ये पुट कर दो इसके अंदर. यू विल हैव x, y एंड z एज इक्वल्स टू, मैं यहां पर -2 पुट कर रहा हूं. -4 प्लस 3 -1 कॉमा -4 प्लस 3 -1. यहां पर किया 2 इंटू -4 -8 प्लस 2 -6. और यहां पर पुट करोगे 2 इंटू -4 -8 -12. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन देम हैज टू बी 0. तो हमें दोनों बातें निकाल के दिखा देनी है. बात समझ में आई? तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया बट लेकिन बेटा 5 नंबर का है. अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन, अब ये नहीं करूंगा मैं, सारे क्वेश्चन मैं ही करूंगा. आप लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है इन द चैट बॉक्स. फॉर्मूला क्या है मैं आपको दिखा देता हूं. व्हाट फॉर्मूला यू विल यूज, लेट मी शो यू ओवर हियर. What exact formula you will use is this one. You will use this particular formula. इसको मैं I'm sorry, this basic formula. You will use this basic formula. Okay, I have showed you how to do cross product. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं बेटा ये हमने सीख लिया है. ये मैंने आपको दिखा दिया, ये वाली लाइन, ये वाला बेसिक था हमारे पास कि कैसे करना है. एंड वी हैव ऑल्सो सीन हाउ टू डू क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट भी करना सीख गए हैं. दोनों चीज आती हैं. निकालो और आंसर लिखो क्वेश्चन नंबर 5 का. कितने मार्क का क्वेश्चन है? 4 मार्क का. अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन क्वेश्चन 1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2. इससे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन तीसरा क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन का हर सवाल में यूज है. यस और नो? इक्वेशन ऑफ ए लाइन का हर सवाल में यूज आ रहा है. और अब अगला क्वेश्चन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मैंने आपको बता दिया था. अब मैं इस क्वेश्चन को पूरा नहीं करूंगा लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था. ये क्या है? लैम्डा. और ये क्या है?
क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ये म्यू वही वाला है r1 इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा v1 वेक्टर, a1 v1 वेक्टर, ये r1 है। और r2 क्या था, a1 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये वो वाला लैम्डा है और ये वो वाला म्यू है। ऑल यू जस्ट हैव टू डू exact same process, calculate the x, y and z in terms of lambda and mu, equate them two equation and put the value of lambda and by in the third equation. So question number 5, question number 6 is your homework, ये खुद आपको करना है। अब आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन, 1 2 3 4 4 सवाल के अंदर लगातार बैक टू बैक बेटा ये सारी चीजें आई हैं, और डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो का तो हर सवाल में यूज है, तो करना ही करना है। बात समझ में आई? अब लगाते हैं अगला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, और यहां पर प्लेन के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपको प्लेन के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कैसे कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस होंगी। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, सबसे पहली सबसे सिंपल इक्वेशन में यहां पर लिखूंगा, यू विल हैव द रिवीजन एंड आई विल मेक श्योर जस्ट 1 आवर लेक्चर विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। अगर आपको लॉजिक बिल्डअप करना है, जस्ट इन्वेस्ट 1 more आवर्स ओवर देयर, और बेटा फुल टाइम में एनरोलमेंट लोगे तो वी विल हैव अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। अब आपको हर एक चीज का लॉजिक आएगा, आराम से तसल्ली से आएगा। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। नाउ what exactly is the plane? See, you can take your mobile phone, this is a plane, yes or no? This palm is a plane, and now question is what is the direction of a plane? Over here मैं आपको बताने वाला हूं, direction of a plane is basically perpendicular to plane। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, डायरेक्शन ऑफ ए प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। और दूसरी बात मैं आपको यहां पर लिखूंगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ इट, इट विल बी ए आई कैप, फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो। सो आई कैन राइट एन ओवर हियर ए बी and C is basically direction ratio of a vector perpendicular to plane, ये वो चीज है। अब इसका मतलब x और yz का n वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यस और नो? हाँ, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जनरली ऐसे हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, जनरली इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली वी विल राइट द इक्वेशन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर। मैंने आपको सिखाया था n कैप लिखो, चलेगा, n कैप लिखो, और n कैप क्या होता है बेटा, n कैप होता है n वेक्टर अपॉन मॉडुलस n। यहां पर अगर आपने वेक्टर को कैप को हटाकर इफ यू विल राइट डाउन मॉडुलस एन, अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 0, तो बेटा ये कहां जाएगा, ये तो वैसे भी इसका वेड़ा गर्ग होने वाला है, सो इट डजंट मैटर। फाइनली वी कैन राइट डाउन द, ये सब बातें हमने डिटेल में की है वहां पर, लेकिन फिर भी यहां पर भी हम उतने ही डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। r वेक्टर माइनस a वेक्टर, या तो आप लिखिए n वेक्टर इज इक्वल टू 0, नो इश्यूज, ओके। और यहां पर डायरेक्शन रेशियो लिखो और डायरेक्शन कोसाइन, इट डजंट मैटर एट ऑल, ओके। समझ में आई बात? और इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर या पॉइंट ए से पास होता हो, एंड विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू इट। ये बात समझ में आई? अब इसी के ऊपर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे हम लोग। योर क्वेश्चन नाउ, ये आपके सामने आया कि अब अच्छा, अब 3 पॉइंट दिए हो तो, अब 2 पॉइंट दिए हो तो मैं आपको बताऊंगा, व्हेन जस्ट 1 पॉइंट विल बी गिवन फॉर श्योर। अगर सिर्फ 1 पॉइंट दिया हुआ है तो आपका आंसर कुछ ऐसे होगा, r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, वेयर दिस n वेक्टर फॉर श्योर विल बी गिवन, ये आपको दिया हुआ होगा। ये क्या है, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है, यही तो निकालना है। और ये क्या है, प्लेन पासिंग थ्रू ए वेक्टर, प्लेन
पासिंग थ्रू ए वेक्टर, यहां से पास होता है, ठीक है। अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएं तो आपके साथ ये होगा। अगर आपके 2 पॉइंट दिए जाएंगे बेटा, तो भी आप क्या करोगे, आर वेक्टर माइनस, ध्यान से सुनना, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, क्योंकि ये ए से भी पास हो रहा है, बी से भी पास हो रहा है, कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखो। नाउ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर, 2 पॉइंट दिए गए बेटा, 2 पॉइंट दिए गए हैं और 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको, सॉरी 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को जोड़कर एक वेक्टर बनता है। तो ये क्या है, दीज आर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर कनेक्टिंग विद द ओरिजिन, यानी कि ये अगर ओरिजिन है तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, लेकिन प्लेन तो ये दोनों पॉइंट कंटेन करता है, दोनों वेक्टर को नहीं मान के चलते फिलहाल के लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि बेसिकली आपको सिर्फ एक वेक्टर ही दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक वेक्टर दिया हुआ है, डेफिनेटली आपको तीसरा वेक्टर, ये क्या है, ये क्या है बेटा, या तो ये दिया हुआ होगा या ये आपको किसी भी तरीके से आपको मालूम चल जाएगा, हम क्वेश्चन लगा लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 3 पॉइंट दिए जाएं, 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ये निकालना बहुत इजी है और इसके तरीके हैं। देखो पहले मैंने क्या किया, दिस इज सम आर, आर माइनस ए का मतलब क्या हुआ, आर माइनस ए का मतलब क्या हुआ, दैट दिस all these 3 are in a plane and r is also in the plane. r minus a का मतलब है this is a vector which lies in the plane, and now this vector, direction of this vector with the, अब क्या निकालेंगे, इस वेक्टर का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है और प्लेन का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि मैं क्या करूंगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके एक प्लेन परपेंडिकुलर निकाल दूंगा, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, निकल गया फॉर्मूला। दिस इज अ वेक्टर इन द प्लेन एंड आई वांट अ वेक्टर, मैंने क्या बोला था बेटा, आर डॉट एन का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन और अ पॉइंट ऑन द प्लेन, अ पॉइंट ऑन द प्लेन और उसका पोजीशन वेक्टर है। डॉट एन वेक्टर क्यों किया, बिकॉज आई वॉन्ट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, ये हमने सीखा था लास्ट स्लाइड में, या तो आप ये कर लो बेटा, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं आपको समझ में आएगा। इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, अगर आपको 3 पॉइंट दिए जाएं तो याद रखना आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा टेंशन मत लेना सर, ए माइनस बी माइनस सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दिस इज इक्वल टू 0। और देयर इज वन मोर पॉइंट, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये भी एक तरीका है, लेकिन ये तब तरीका है जब आपको करना आता हो। कैसे डिटर्मिनेंट खोलेंगे इसको, x2 इसको ऐसे लिखते रखो, अब इसको वैसे ही खोलना है जैसे आई जे के खोला था, ओके, प्लस माइनस प्लस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1, ये करना है। दिस इज इक्वल टू 0, देखने में इजी है। अब क्वेश्चन लगाते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस लिख लेते, पहले दिस करते रहेंगे हम लोग। 3 माइनस 4 माइनस 5, ये 3 पॉइंट हैं, एंड 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, वेयर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट, यानी कि एक लाइन जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, अ लाइन विच इज कनेक्टिंग दिस टू पॉइंट क्रॉसेज अ प्लेन, यानी कि एक लाइन एक प्लेन को चीर देती है, क्रॉस कर देती है, और जब क्रॉस करेगी तो बेटा क्या होगा, दे विल बी अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वी विल हैव जस्ट वन वे, एग्जैक्टली वन वे, एंड आई विल शो यू हाउ। क्रॉसेस द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट 1 2 3, अब क्या करना आपको समझ में आ गया।
determined by the plane. Now equation of a plane will be equals to बेटा x minus पहला पॉइंट 1 2 3 1 y minus 2 z minus 3. सीख लो, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की, आपको बस बार बार क्वेश्चन लगाने हैं. 4 2 minus 3 4 2 minus 3 minus 1 minus 2 minus 3. अगला पॉइंट क्या है 0 4 3 0 4 3 minus 1 minus 2 minus 3. आपने देखा सब जगह यही हो रहा है और यही है आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन. अब करना कैसे है, प्लस माइनस एंड प्लस. सो x माइनस 1 इसको मत लेना, बस बाकी इन दोनों को. ये क्या है 2 माइनस 2 0 2 माइनस 2 क्या है 0 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 क्या है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं, आपको और क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हम कौन सी टेबल सॉल्व कर रहे हैं. दिस इज x माइनस 1 y माइनस 2 एंड z माइनस 3. 4 माइनस 1 इज 3 2 माइनस 2 इज 0 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 इज माइनस 6 माइनस 1 2 एंड 0. ठीक है, अब इसको पकड़ेंगे पहले x माइनस 1. now if we are solving this one, do not select these two numbers. 0 into 0 0 minus 2 into minus 6 minus of 12 आया. now minus times of y minus 2, यहां पर याद है माइनस लगाना है और फिर वही इन दोनों को नहीं पकड़ना है. 3 into 0 0 minus minus 6 minus 1 is 6. ठीक है, और सिमिलरली आपको z करना है. क्या है z माइनस 3. लेट मी राइट डाउन ओवर हियर ताकि आपको क्लियरली दिखे. अच्छा पहले इसको लिख दे x माइनस 1 0 माइनस और माइनस 12 टाइम्स हो गया बेटा. माइनस 6 माइनस ये आपका बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ y माइनस 2. और z का भी मैं लिखने वाला हूं. z के लिए z माइनस 3 यू विल हैविंग z माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 6 माइनस 1 0 इंटू 6, तो यहां पर आपका आ जाएगा 6 टाइम्स. ठीक है, ये मैंने यहां पर डायरेक्टली इक्वेशन लिख दी. व्हेन यू विल सॉल्व दिस फर्दर व्हाट एग्जैक्टली यू विल हैव इज 12x प्लस 6y. और ये किसके बराबर बेटा 0 के बराबर है. यहां पर लिख देते हैं अगले पेज पर. आई होप समझ में आ गया होगा. 12 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस 6y माइनस 2 plus 6z minus 3. I hope this is perfectly correct. Yes, perfectly correct. Okay. आंसर क्या हुआ आपका, ये हुआ. अब इसको सॉल्व करेंगे. 12x plus 6y plus 6z will be equal to minus 12. उधर जाएगा 12. 6 into minus 2 minus 12 उधर जाएगा plus 12. 6 into minus 3 minus 18 इधर आएगा बन जाएगा 18. बेटा इसको सॉल्व कर लेना. ये 18 प्लस 12 30 प्लस 12 42. वी विल डिवाइड होल इक्वेशन बाय 6. डिवाइड बाय 6 यू विल हैव 2x प्लस y प्लस z इज इक्वल्स टू 7. ये आपके सामने आ चुकी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन. क्या ये मुश्किल था निकालना? ना बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. अब लिख देता हूं इसको मैं ना. इक्वेशन ऑफ द प्लेन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन is equation of the plane is equals to क्या है आपका 2x plus y plus z is equals to 7. okay, this is the equation of the plane. ये आपके एक और दो क्वेश्चन और बचे हमारे. ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन वो भी निकालना बहुत जरूरी है बेटा. जस्ट अ मिनट, मेरी बैटरी सिस्टम की भी डाउन है. अच्छा अब निकालनी है अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. क्या है वो, ये भी लिख देते हैं. इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या थी, x पासिंग थ्रू 3 माइनस 4 एंड माइनस 5. 3 माइनस 4 y माइनस और माइनस 4 प्लस 4 एंड माइनस 5, ये आपका बन जाएगा. नाउ डिवाइड बाय बेटा डायरेक्शन रेशियो 3 माइनस 2 1. ओके, माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 3 बन जाएगा माइनस 1. ओके, एंड माइनस 5 माइनस 1 बन जाएगा माइनस 6. अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात सिंपल सी है, ये लैम्डा के बराबर है. ओके, यहां से आपका x आएगा. x विल बी इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, y विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा माइनस 4 एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 6 लैम्डा माइनस 5.
Now if a line, these are the points on the line and one of the point is on the plane also. Put all these point over here. यहां पर पुट करेंगे, क्या इक्वेशन है 2x, x क्या निकला बेटा लैम्डा प्लस 3, यहां पर पुट करो. नाउ इसके बाद क्या है y, y क्या है चेक कर लो. यहां पर क्या है y में क्या पुट करना है माइनस लैम्डा माइनस 4, माइनस लैम्डा माइनस 4. और z में क्या पुट करना है बेटा चेक कर लो माइनस 6 लैम्डा माइनस 5, माइनस 6 लैम्डा माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 7. अब ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा. ये तो मैंने लैम्डा लैम्डा एक साथ कर लिया. 2 इंटू 3 6 माइनस 4 एंड माइनस 5 एंड इस 7 को भी उठाकर इधर ले आया. अकेला अच्छा नहीं लग रहा है. यहां से अगर आप सॉल्व करोगे दिस विल केम आउट एज माइनस 5 लैम्डा एंड दिस विल केम आउट एज, अगर इसको आप सॉल्व करते हो दिस विल बी इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 is minus 10. When you will solve, ultimately you will have lambda equals to minus 2. This is the answer. Now put the point over here, lambda equal to minus 2. ये आपका आएगा 1. So x equal to 1. Lambda equal to minus 2 put करो. Minus of minus 2 is 2. 2 minus 4 is minus 2. Put minus 2 over here. Minus 6 into minus 2, 12. 12 minus 2, 5 is 7. This is the point which is on the line and on the plane also. We can see the point of intersection. बेटा 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. अब अगला लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड ऑफ द प्लेन. फिर से वही सवाल 2019 में आया, 2017 में आया, रिपीटेशन. मान के चलो फिर से ऐसा ही सवाल आएगा. ठीक है, तो ये आपने किया. ओके, अभी 2 सवाल और बचे हैं. फटाफट से मैं आपको बता देता हूं क्या चीजें हैं, क्या चीज है दोनों. अब क्वेश्चन नंबर, ये आपका सैंपल पेपर 2020 का सवाल है, देख लो. और ये 2019 का सवाल है. क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं, सैंपल बाद में करेंगे. द फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर. मतलब मैं आपको सीधा सा फंडा बताता हूं एंड यू विल कैलकुलेट. इट इज गिवन ओवर हियर. अगर आपको निकालना है वेक्टर फॉर्म में, आप क्या लिखोगे आर वेक्टर माइनस, टेक एनी वन ऑफ द वेक्टर, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, और ये क्या है माइनस 2k वेक्टर. ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट विद द b माइनस ए. जैसे ये b है और ये a है, तो b माइनस ए मैं आपको डायरेक्टली लिखकर बता रहा हूं. 2i माइनस i इज i. ओके, माइनस j इज माइनस 2j. ओके, k माइनस ऑफ 2k इज 3k. ये आपका निकल गया b माइनस ए वेक्टर. ये मैंने आपको क्या बताया b माइनस ए वेक्टर बेटा. क्रॉस प्रोडक्ट विद, अब निकालना बेटा आपको है. अब क्या लिखना है c माइनस ए निकाल दो. i माइनस आई 0, 2j माइनस j इज j वेक्टर, एंड k माइनस 2k इज 3k. ये आपका आ जाएगा 3k. अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है ये बात आपको पता है, नहीं पता है तो फिर से देख लो बेटा. i j k, यहां पर 1 माइनस 2 3, 0 1 एंड 3. इसको सॉल्व करो, मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूं. दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 आयोटा. कर लेना बेटा. माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 इंटू माइनस 3. जे के फॉर्म में आएगा आपका 3 माइनस 3 जे कैप. ओके, एंड फॉर द के कैप यू विल बी हैविंग प्लस के कैप. बेटा मैं पूरा क्वेश्चन ही लगा दे रहा हूं आपके लिए. ये निकल गया, ये क्या निकल गया, ये जो चीज है ये आपकी निकल चुकी है क्रॉस प्रोडक्ट. अब आप इसको डॉट प्रोडक्ट करके आंसर निकाल के रख देना और आप लोग आंसर करोगे चैट बॉक्स के अंदर. मैं फाइनल इक्वेशन बता दूं, फिर से बता दूं एक बार. r माइनस क्या है i प्लस 2j, क्या लिखा हुआ था i प्लस j माइनस 2k, i प्लस j माइनस 2k एंड डॉट प्रोडक्ट विद आपको मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, आपको बता ही देता हूं एग्जैक्टली करना कैसे. माइनस 9 माइनस 3j प्लस k, माइनस 9 ij माइनस 3j प्लस k, माइनस 3j
plus k vector. Okay, now when you will have a dot product with this one, ऐसा ही होता है, r को इससे करोगे आपके सामने आएगा -9x, बिकॉज ये क्या है बेटा x i कैप प्लस, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं आपको और सिंपल तरीका बताता हूं, ये क्या है x i कैप माइनस आई कैप x -1 i कैप, ओके, y j कैप माइनस j कैप इज y -1 j कैप, ओके, एंड k z -2 इज z +2 k कैप. अब बेटा i का i से मल्टीप्लाई तो ये हट जाएगा, ओके, नाउ दिस इज दिस थिंग, और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल हैव द आंसर -9x -1 -3 y -1 एंड +1 इंटू z +2 इक्वल टू 0. आप इसको सॉल्व कर लेना, आपके सामने पूरा आंसर आ जाएगा. अब यू विल राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, ठीक है. तो हमने ये फटाफट से आंसर लिख दिया है. अब पूछ रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2 3 7 r - a एंड पैरेलल टू द प्लेन ऑब्टेन्ड अबव. तो बेटा पैरेलल मतलब क्या है, अब मैं आपको इसका भी आंसर बताऊंगा. पैरेलल का मतलब है that both the planes are parallel, mean the direction of both the planes are same, means both will have same perpendicular. So this will be r vector minus, सिर्फ इतना सा करना है, 2i plus 3j plus 7k cap and you will multiply -9i, क्या लिखा हुआ है, -9i minus 3j plus k. यही तो है परपेंडिकुलर वेक्टर. अच्छा बेटा थोड़ा सा देखो, मैंने आपको जल्दी जल्दी चीजें बताई हैं बिकॉज वी आर हैविंग द लिमिटेड टाइम. सो अगर कहीं भी आपको लगता है कैलकुलेशन एरर है, फील फ्री टू राइट डाउन योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स, ठीक है. अभी आप फिर से वही तरीके से करोगे, मैं आपको आंसर बताऊं, -9 इंटू x -2 -3 इंटू y -3 एंड 1 इंटू z -7, ये आपका आंसर आएगा इक्वल टू 0. कर लिया. अब आखिरी सवाल क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देख लेते हैं. Find the equation of a plane passing through the points these two. इन दो, अच्छा वही सवाल आया है कि कर लेते, अच्छा क्वेश्चन है, और मान के चलिए प्लेन से सवाल आएगा ही आएगा. एक पॉइंट दे रखा है 2 1 2 और दूसरा पॉइंट दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, 4 -2 and 1, 4 -2 and 1, दो पॉइंट दे रखे, ठीक है. अब ध्यान से सुनना, ये प्लेन है, इस प्लेन में यू आर हैविंग ए, यू आर हैविंग बी, तो आपने इन दोनों को ज्वाइन किया और तीसरा मान लेते आर, ठीक है. अब ध्यान से सुनेंगे, आपको मिल गया एक वेक्टर. नाउ एंड परपेंडिकुलर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. कौन सा प्लेन, मैंने आपको क्या बोला था कि बेटा जो भी आंसर आता है यहां पर, ये r के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये क्या है, प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर. अब आप सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर आर टू प्लेन्स, आई वांट टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. यानी कि we want to find the equation of this plane and this plane is perpendicular to this plane and this plane is having the vector this, that means the vector on this plane and this vector on this plane are parallel to each other, coplanar है. और जब भी कोप्लेनर आया बेटा मजा आ गया. क्यों मजा आ गया मैं आपको बताता हूं. ये प्लेन का देखो वेक्टर ऐसे है और इधर ये ऐसे है. अब मान लेते हैं, ठीक है, ये कैसे है, एक और वेक्टर है जो इस प्लेन के पैरेलल में है. मैं इस प्लेन के वेक्टर को, मैं इस परपेंडिकुलर, ये कहां से आया, फिर से बता रहा हूं, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, दोनों परपेंडिकुलर हैं. ये प्लेन गिवन है और ये प्लेन निकालना है. ये प्लेन पता है और इस प्लेन का डायरेक्शन पता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये ऐसे है और प्लेन ऐसे है, कोप्लेनर. मैं इस वेक्टर को उठाऊंगा, बिल्कुल उठा सकता हूं, और यहां पर लगा दिया, यानी कि इस वेक्टर को मान लेते हैं, लेट्स कॉल इट z वेक्टर. तो आपको मिल गया z वेक्टर. बेटा आपको z वेक्टर मिल चुका है. आई बात समझ में. अब आपके पास दो वेक्टर मिल चुके हैं, आंसर क्या आएगा, r वेक्टर माइनस, टेक एनी पॉइंट, नो इशू,
टेक एनी पॉइंट, नो इश्यू। क्यों? इसका मतलब क्या है? r माइनस ए का, r माइनस ए का मतलब है मैं ये वाला वेक्टर निकाल रहा हूं। r माइनस ए मतलब r माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इस पूरे का मतलब क्या है? वी आर कैलकुलेटिंग द डायरेक्शन रेशियो, वी आर कैलकुलेटिंग अ वेक्टर joining a variable point and a fixed point. It means the plane passing through a point. Now dot product in the direction to the perpendicular to this planes, I have two vector. If we cross multiply two vector, we will have a vector which is perpendicular to this plane and answer आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है? यू विल राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। आपको बेटा लिखना होगा। तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन के हैं और 1 क्वेश्चन इसका आंसर। मैंने आपको तरीका समझा दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब फिर से वही वाला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अ लाइन, एक लाइन जो इस प्लेन को चीर देती है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लास्ट वाला क्वेश्चन किया है नहीं किया है? ये वाला क्वेश्चन कहां है? ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आया। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा बार बार कि अ प्लेन एंड अ लाइन इंटरसेक्शन, और मैंने आपको समझा दिया लैम्डा और म्यू वाले तरीके से। अब बचता है एक आखिरी क्वेश्चन विच विल कवर द लास्ट थ्योरी दैट यू आर हैविंग। समझिए अभी इसका मतलब क्या है। अब ये है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये आपकी आखिरी। तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया बेटा, बट कोई बात नहीं, हमने सब कुछ कवर कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पर लिख लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ प्लेन विल बी इक्वल टू दिस। ये आपका आएगा क्या? अगर प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस वी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यहां पर वी कैन कैलकुलेट एनी वेक्टर फॉर्म इन दिस फॉर्म ऑल्सो, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपका आएगा ax1 एंड द पॉइंट इज x1 कॉमा y1। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एंड द सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ये हमने लास्ट लेक्चर में नहीं किया था, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स। ये क्वेश्चन भी आ सकता, आया नहीं अभी तक बेटा, तो आ सकता है। दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द प्लेन फर्स्ट एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली पिछले 4-5 साल में नहीं आया है तो करके जाना, क्योंकि इस बार आ सकता है। लिख लेना कॉपी के अंदर, और आ जाए ना तो इसी वीडियो पर वापस आकर बोलना सर आपने बोला था और आ गया। बाकी सारी चीजें सेम है। ओके, और प्लेन कौन कौन से? ऑब्वियसली ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0, ये दोनों चीजें हैं। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। अब बहुत इजी क्वेश्चन है। पॉइंट क्या है? पॉइंट है 1,3,-6 एंड ड्रॉन, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द प्लेन। यानी कि एक पॉइंट से एक प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये एक पॉइंट होगा प्लेन पर। हाँ, पॉइंट पर ये प्लेन होगा ना। अच्छा, अब एक चीज बताओ बेटा कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है, और इस प्लेन का डायरेक्शन भी क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका डायरेक्शन निकालना आता है? बिल्कुल निकालना आता है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या है? चेक करो एक बार। 2x प्लस y माइनस 2z। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो हर एक क्वेश्चन बड़ा इजी है। और बेटा चेक करो, हमने क्या बोला था? डायरेक्शन रेशियो। अब वो बात काम आई है यहां पर। 2020 के सैंपल पेपर में इतनी छोटी सी बात हमने निकाली, दैट एन वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर। तो आप क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज i कैप प्लस 3j कैप
यहां से -6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस j कैप -2k कैप। अब बेटा अब फिर से वही सवाल आ गया, फिर से वही सवाल आ गया। अ लाइन इज क्रॉसिंग द प्लेन, we will calculate the x y z in the form of lambda and will put in this equation। मैं आपको ये भी बता देता हूं बेटा x y z क्या निकलेगा। x आएगा आपका 2 लैम्डा प्लस 1, y आएगा 2 लैम्डा सॉरी 1 इंटू लैम्डा लैम्डा प्लस 3 एंड z आएगा आपका -2 लैम्डा -6। और आपको ये तीनों पॉइंट इसके अंदर पुट करने हैं, यू विल हैव द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, अब बात ये है कि डिस्टेंस कैसे निकालें। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, कैसे निकालना है। इक्वेशन क्या है, 2x प्लस y -2z, 2x प्लस y -2z और उसके बाद क्या लिखा है +5। ये आपका डिस्टेंस है और जहां जहां ब्रैकेट छोड़ा है बेटा वहां वहां पॉइंट लिख लेना। कौन सा पॉइंट है, 1 3 -6, 1 3 एंड -6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। और ये आपका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही क्वेश्चन पूछा है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। फाइंड द इक्वेशन, वो भी हमने निकाल दी। कैसे निकाली ये आपको मैं दिखा दिया है। इक्वेशन भी निकाल दी, पॉइंट भी निकाल दिया और लेंथ भी निकाल दिया। तो बेटा ये पूरी 3D ज्योमेट्री है जो हमने कवर की। सो आज के लिए इतना ही। और ये सब तो हो गया, पेपर कैसा आया मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, फिर से मैं बता देता हूं कि आप सबके पास 2 दिन और हैं। अगर आप 2 दिन में ज्वाइन कर लेते हो, यू विल हैव द 50% डिस्काउंट ऑन दिस होल कोर्स। जो पूरा कोर्स है उस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन 27 दिसंबर तक, उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं है। फटाफट से ज्वाइन करो, फटाफट से लॉन्ग टर्म बैच में मिलते हैं एंड वी विल हैव द सम मोर डिस्कशन। 5000 घंटे 10,000 सवाल रिव्यू आप लोग करवा सकते हो हर एक चीज का। यू विल हैव द फैकल्टीज, all the faculties are very qualified. You will have the option to schedule your class at any point of time. You can schedule your language, you can skip any lecture and can watch the micro course। मतलब छोटे छोटे पैकेज बने हैं और एग्जाम से पहले क्रैश कोर्स। अगर आपको लगता है यू आर ओके विद इट, मुझे नहीं चाहिए सर, कोई बात नहीं बेटा, एटलीस्ट यू कैन शेयर इट विद सम पर्सन। पहले ये प्राइसिंग थी, ठीक है, एक महीने की 50% ऑफ मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन कैसे मिलेगा, यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड ADAPRO कर लेना। और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है एनरोलमेंट के लिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एनरोलमेंट अगर आप लोग को नहीं करना, इट्स कंप्लीटली फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड कि बड़ा मजा आ रहा है यूट्यूब पर, लेकिन जिसको जरूरत है उसको शेयर कर देना। दिस इज द ओनली हेल्प दैट यू कैन डू टू मी, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी बेटा। और नहीं है बेटा कोई बात नहीं, पढ़ाई करेंगे, नहीं है पैसा कोई बात नहीं, पढ़ाई पूरी करेंगे, मेहनत पूरी करेंगे, साथ मिलकर तोड़ेंगे फोड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको लेक्चर बहुत शानदार लगा हो तो प्लीज कमेंट भी कर देना बेटा जोरदार, बिकॉज बहुत मेहनत से हमने ये लेक्चर बनाया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू पीपल, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। एंड आज क्या है बेटा, मैरी क्रिसमस। तो सभी को मैरी क्रिसमस, सभी को शुभकामनाएं क्रिसमस की। और पार्टी करो, धूमधाम से पढ़ाई करो और एंजॉय करो आज का दिन। टाटा ऑल ऑफ यू।